Hello everyone. We are actually dealing with chapter 4. Okay. And the topic that we were discussing in our last lecture was about kinds of price elasticity of demand. Kinds or degrees of price elasticity of demand. This was the topic that we were discussing in our earlier session. Okay, there are 5 kinds of price elasticity of demand. जिसमें से first 2 types we have already discussed in our previous session. Okay, let's revise it quickly. The first was perfectly elastic demand. The second that we have discussed was about perfectly inelastic demand. इन दोनों के बारे में हमने हमारे प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था. अब परफेक्टली इलास्टिक के बारे में कुछ ऐसा था, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, हियर द प्राइस रिमेन्स सेम irrespective of the change in the quantity. Quantity अगर increase भी होती है, then also the price remains same. In this case, curve जो बनेगा, okay, x-axis and y-axis. This is price. This is quantity demanded. Curve जो है वो parallel to x-axis बनेगा. Okay. Now in this case, price elasticity of demand is infinite. Okay. And फिर इसके observations हमने देखे थे. Now the next topic, perfectly inelastic. जहां इसका opposite होता है, price in case अगर बढ़ती भी है, then also the quantity remains same. Okay. So इस case में जो curve बनेगा, this is price, this is quantity demanded, curve will be parallel to y-axis, and the observations also we have seen in our previous session. Now these 2 topics we have seen in our earlier session. 3 more kinds of price elasticity of demand we are going to discuss today. Okay. Now let's start with the 3 other kinds of price elasticity of demand. Now the third one. Okay. The third is unitary elastic demand. Understand, this is the third type. यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. इसमें जो प्राइस में एंड डिमांड में चेंज होता है ना, वो इक्वल होता है. सी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड. ओके, मतलब अगर कहूं कि 10% प्राइस में राइज हुआ है तो 10% डिमांड में फॉल हुआ है. सी, ऑपोजिट रिलेशन है, ये समझ लेना है हमें यहां पे. ओके, लेकिन परसेंटेज वाइज देखने जाओ तो दोनों इक्वल है. इफ आई से प्राइस इंक्रीजेस बाय 10%, यूनिटरी इलास्टिक है, तो डिमांड डिक्रीजेस बाय 10%. दोनों में परसेंटेज लेवल सेम होना चाहिए. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ द टेबल, कर्व एंड the observation. Okay, the table here everyone. Price and quantity demanded. Okay, now दोनों में परसेंटेज चेंज इक्वल होना चाहिए. अगर प्राइस में जितना परसेंटेज चेंज होता है उतना ही डिमांड में चेंज होना चाहिए. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड दोनों 100 है. परसेंटेज के व्यू पॉइंट से अगर आप कोई भी डिजिट रख सकते हो, लेकिन 100 रखते हो तो परसेंटेज में कैलकुलेशन है वो इजी रहता है. नाउ इफ आई से द प्राइस डिक्रीजेस by 50%, तो यहां पे 50 हो जाएगा. प्राइस 50% डिक्रीज हुआ है एंड यहां पे डिमांड 50% इंक्रीज होगा. यहां क्या हुआ है, प्राइस डिक्रीजेस बाय 50% एंड यहां क्या हुआ है, डिमांड इंक्रीजेस बाय 50%. देखो दोनों में परसेंटेज इक्वल है. ओके, one should increase and the other should decrease. Percentage wise दोनों same होने चाहिए. So this is unitary elastic. अगर इसमें 20% है तो इसमें भी 20% होना चाहिए. That is the case here. Okay. Now let's see the table here everyone. Okay. Now the table for unitary elastic everyone.
Sorry, the table is done. Now the curve is quantity demanded, X, Y. This is price. Okay, price is 50 and 100. Okay, यहाँ 50 है, यहाँ 100 है, यहाँ 50, 100, 150. पहले दोनों 100 100 है. The price and quantity demanded are here. Okay, then price decreases and the quantity demand increases, then the curve is this one. पहले जो है वो कर्व यहाँ पे था, अब जो कर्व है वो यहाँ पे आ गया. So the demand curve will be something like this. So demand curve is something like this. Now in this case, जितना फॉल होता है उतना ही इंक्रीज होता है. So price elasticity of demand in this case is 1. Price elasticity of demand in this case is 1 because जितना परसेंटेज इंक्रीज होता है उतना परसेंटेज डिक्रीज होता है. Okay, so the price elasticity of demand in this case is 1. Now the observations. Okay, अब इसका observations देखते हैं one by one. Okay, see percentage change in quantity demanded. This is the first observation that we will write here. Percentage change in quantity demanded is equal to percentage change in price. Okay, then what is happening here that we will write here? 50% fall in price and 50% rise in demand. This is our second observation. Okay, now see, this is P1. You can name it as P1 and this is say Q1. Okay, P1 उसमें भी 50% change है and Q1 उसमें भी 50% change है. Okay, when you draw it with proper measurement you get this line P1 is equal to Q1 क्योंकि दोनों में 50% ही change है. Okay, अब ये वाली सिचुएशन कहाँ पॉसिबल है? ओके, दिस एग्जिस्ट इन केस ऑफ गुड्स जिसकी डिमांड है ना मॉडरेटली इलास्टिक होती है. ओके, जैसे कार है, ओके, टेलीविजन है, ओके, देन स्कूटर है, एक्सेट्रा. जो कंफर्ट्स के गुड्स, कंफर्ट्स लग्जरियस नहीं है, ये सब कंफर्ट्स हैं. इनमें ये सब होता है. जितना प्राइस में चेंज हुआ ना उतना ही डिमांड में चेंज होता है. एंड द लास्ट इज price elasticity of demand is 1 in this case. Okay, so this was about unitary elastic demand. Okay, third kind of price elasticity of demand. Now let's talk about the fourth kind of demand. Okay, okay, now let's talk about the fourth kind of price elasticity of demand, that is इसके पहले वाला जो हमने देखा था वो था unitary elastic demand. Now this one is greater than यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. जिसका मतलब क्या होता है, डिमांड में है वो ज्यादा परसेंटेज चेंज होता है एज कंपेयर टू द प्राइस. परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. मतलब प्राइस में जितना चेंज होता है ना उससे ज्यादा डिमांड में चेंज होगा. ओके, से फॉर एग्जांपल यहाँ 75% चेंज हुआ है, यहाँ 50% चेंज हुआ है. ओके, सो ये क्या सजेस्ट कर, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक. ओके, ये एक टेबल से समझते हैं. प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, पहले दोनों 100 100 लिख लेते हैं. ओके, अब एक बात, डिमांड में है ना वो ज्यादा चेंज आना चाहिए एज कंपेयर टू द प्राइस एंड ऑपोजिट रिलेशन भी होना चाहिए. If one increases, the other should decrease. Okay, now I'm increasing the price by 50%. So ये हो जाएगा 150. नाउ ये इंक्रीज हुआ तो ये मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा. दैट इज फाइनल. 50 से ज्यादा होना चाहिए. लेट्स मेक इट 80%. सो इट विल बी 20. ओके, प्राइस में जितना चेंज है उससे ज्यादा किस में चेंज हुआ है? उससे ज्यादा चेंज हुआ है डिमांड में. ऑपोजिट होना चाहिए. अगर ये डिक्रीज करते हो तो ये इंक्रीज करना होगा आपको. Let's say here 100 and here also 100.
प्राइस इंक्रीज हो जाती है 150, क्वांटिटी डिमांडेड आ जाता है 20 पे, ऐसा है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग 100 and 100, नाउ प्राइस इंक्रीजेस एंड क्वांटिटी डिक्रीजेस, तो ये वाला कर्व ऐसे बनता है। ओके, सो इन दिस केस द कर्व जो है ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक का। ओके, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। Okay, so PED in this case is greater than 1. Price elasticity of demand in this case is greater than 1. पिछले वाले में क्या हुआ था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 1 ही रहा था, बिकॉज प्राइस में एंड क्वांटिटी डिमांडेड में दोनों में सेम ही चेंज था 50-50%, लेकिन यहाँ देखो यहाँ 80% है एंड वहाँ 50% है। ओके, सो दैट इज द केस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद ऑब्जर्वेशन, द फर्स्ट वन। पहले तो यही लिखेंगे, percentage change in quantity demanded is more than percentage change in price। फिर कितना है एक्चुअली वो लिखेंगे, डिमांड में कितना चेंज हुआ है 80%। ओके, डिमांड चेंजेस बाय 80% एंड प्राइस चेंजेस बाय 20%। द थर्ड ऑब्जर्वेशन P1 एंड Q1 के बारे में है, ये है Q1, ये है P1, यहां ज्यादा है। ओके, सो थर्ड इज Q1 इज ग्रेटर देन P1। ओके, इसमें इतना ही गैप है, यहां ज्यादा है, सो Q1 इज मोर देन P1। अब ये वाली सिचुएशन कहां पॉसिबल होती है, लग्जरियस गुड्स में, लग्जरीज में ये चीजें पॉसिबल होती हैं। ओके, एंड द लास्ट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। ओके, क्लियर विद द टेबल एंड कर्व। ऑब्जर्वेशन आपको यहां पे देख के ही लिखना है। ओके, सो दिस इज द फोर्थ से ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, नाउ द लास्ट वन, okay, now the last one is less than यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जिसमें क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज मोर। इसके पहले वाले में क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर, यहां पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, ऑपोजिट करना है, यहां कम होना चाहिए, यहां ज्यादा होना चाहिए, प्राइस में परसेंटेज ज्यादा होने चाहिए। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ द टेबल एंड द कर्व। पहले दोनों 100-100 ही रख लेते हैं, परसेंटेज है इसीलिए 100-100 रखोगे तो कैलकुलेशन में इजी रहता है। ओके, नाउ अगेन पहले भी मैंने यही किया था दैट प्राइस आई वाज इंक्रीजिंग बाय 50%। अब यहां डिक्रीज करना है, वो फाइनल है, यहां इंक्रीज हुआ है, यहां डिक्रीज हुआ है। ओके, अब क्वेश्चन क्या है कि प्राइस में ज्यादा चेंज होना चाहिए, तो आई एम मेकिंग इट हियर ओनली 20%, दिस इज 80। ओके, नाउ द कर्व हियर एवरीवन, now price say 100 here, demand is 100 for example here, then price rises by 150, क्वांटिटी डिमांडेड कम्स टू 80 हियर, तो 100 and 100 का जो कर्व आपको ड्रॉ कर लेना है, देन इट इज 150 and 80, so this is the intersection, the curve will be something like this। so PED in this case is less than 1। पिछले वाले में क्या था, PED was greater, now here PED is less। okay, now the observations, पहला ऑब्जर्वेशन तो यही रहेगा, percentage change in price is more than percentage change in quantity demanded। दूसरा परसेंटेज में हम लिखेंगे प्राइस में कितना चेंज है, 50% चेंज इन प्राइस एंड 20% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब P1 एंड Q1 के बारे में यहां देखो, ये Q1 है, इतना ही है, P1 इज मोर, P1 इज ग्रेटर देन Q1। ओके, तीन ऑब्जर्वेशन ये हो गए। अब ये वाला कौन से सिचुएशन में पॉसिबल है, ओके, नेसेसिटीज में, नेसेसिटीज जहां पे वहां ये होता है,
Okay, and the last one is PED, in this case is less than 1. Okay, so these are the 5 different kinds of price elasticity of demand. Okay, and that 5 kinds, once again: 1, perfectly elastic, perfectly inelastic, unitary elastic, greater than unitary, and less than unitary elastic. These are the 5 different kinds of price elasticity of demand. Now, further in this chapter, we have one more theory portion, and then we will move to the numerical section. Okay, let's finish today the theoretical portion. Okay, the topic that is left here is factor affecting price elasticity of demand. Okay, so let's finish that topic, factors affecting price elasticity of demand. Okay, everyone. Now let's finish the last theoretical portion from the chapter. The topic is factors affecting price elasticity of demand. अब ये टॉपिक समझने से पहले आपको 2 वर्ड का जो है वो मीनिंग समझना होगा कि इलास्टिक कब होता है एंड डिमांड है वो इनइलास्टिक कब होता है. अब देखो, इलास्टिक इज यूज्ड व्हेन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी रिस्पॉन्ड्स टू द चेंज इन प्राइस. सिंपल है, प्राइस में अगर चेंज होने की वजह से अगर डिमांड में चेंज होता है, then we will consider it as elastic situation. प्राइस में चेंज अगर होता है फिर भी डिमांड एज इट इज रहता है, then we will consider it as inelastic situation. Once again, if you are clear with these 2 things, all the points here will be very clear. Once again, if there is change in, आप कोई भी टॉपिक हो ना उसमें सोच के देखो कि इसमें प्राइस में चेंज होता है तो क्या होगा. डिमांड चेंज होता है, say yes, it is elastic. प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज नहीं होता है, then it is inelastic. That's it you need to think about here in this topic. Now let's start with the first point, availability of close substitute. Okay, now if close substitutes are available तो क्या है, and if close substitutes are not available तो क्या है. See, this is the point. Now to sub point, if close substitutes are available, and 2, if close substitutes are not available. देखो, अगर कोई भी चीज हो उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, उसके जैसा ही दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, तो इसकी प्राइस में चेंज होगी ना तो डिमांड में चेंज आएगा. जिसकी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो अगर किसी एक की प्राइस में चेंज होगी तो उसकी डिमांड में भी चेंज हो ही जाएगा. ओके, सो इन दिस सिचुएशन वी विल कंसीडर इट एज इलास्टिक. क्योंकि प्राइस में चेंज होता है और डिमांड में चेंज होगा तो इट इज इलास्टिक. अब जिसका क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, ओके, देन उसकी प्राइस में अगर चेंज होता है तो डिमांड में चेंज नहीं होगा. दैट इज व्हाई वी कंसीडर इट एज इनइलास्टिक. ऐसा ही सब में हमें लिखना है, ऑल द टॉपिक्स में. ओके, पहले ये पॉइंट होगा, फिर उसके 2 सब पॉइंट रहेंगे, फिर इलास्टिक कब होगा एंड इनइलास्टिक कब होगा. दैट इज द थिंग दैट वी आर डिस्कसिंग हियर. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हियर एवरीवन, proportion of total expenditure spent on a commodity. Now point number 2 I am writing here everyone, proportion of total expenditure spent on a commodity. Now this is the second point. Okay, अब इसके 2 सब पॉइंट रहेंगे. या तो बिग फ्रैक्शन स्पेंड होता है या तो स्मॉल फ्रैक्शन स्पेंड होगा. ओके, अब देखते हैं इलास्टिक इनइलास्टिक कब होगा. व्हाट इज द पॉइंट, प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर स्पेंड. ओके, कितना एक्सपेंडिचर होता है एक कमोडिटी पे. मान लो 2 कमोडिटी है, एक में है वो उसमें मेरा एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा स्पेंड हो जाता है, मेरी इनकम का ज्यादा परसेंटेज उसमें चला जाता है, सो आई विल कंसीडर इट एज बिग फ्रैक्शन. Okay, say if I want to buy a laptop, then big fraction of the money goes there. But if I want to buy a pen drive, then a small fraction of money will be spent there. So इस केस में इलास्टिक कब होगा and inelastic कब होगा. Okay, now see, if big fraction of the amount is spent, okay, so उसमें अगर प्राइस चेंज होगा तो एब्सोल्युटली डिमांड में भी चेंज आएगा, सो इट इज इलास्टिक. अब स्मॉल फ्रैक्शन है, से अगर वो 500 का है या 510 हो जाता है, देन ऑल्सो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, सो आई विल राइट हियर एज इलास्टिक. Okay, that is the second point here, proportion of total expenditure spent. Now point number 3 is about habits.
इजी है हैबिट्स में देखें. If a person is habituated and if a person is not habituated, if a person is habituated for a commodity and he is not habituated for that commodity. Okay, अब कोई एक पर्सन है वो किसी प्रोडक्ट का हैबिचुएटेड है, he wants that product at any cost. Say if he is consuming a tobacco or sell liquor or something like that, वो हैबिचुएटेड है उस कमोडिटी से, तो उसकी प्राइस में अगर चेंज आता है तो क्या डिमांड में चेंज आएगा या नहीं. ओके, इफ अ पर्सन इज हैबिचुएटेड तो उसकी प्राइस में अगर चेंज आता है देन ऑल्सो डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा. अगर प्राइस 10% 15% हाई हो जाती है देन ऑल्सो नो चेंज इन द डिमांड. दैट इज व्हाई इट इज इन इलास्टिक. इफ अ पर्सन इज नॉट हैबिचुएटेड, उसमें अगर चेंज आता है प्राइस में देन एब्सोल्युटली डिमांड में भी चेंज आएगा. ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज इलास्टिक. नाउ पॉइंट नंबर 4, नेचर ऑफ द कमोडिटी. Now here we will talk about 3 topics: basic necessities, luxuries and comforts. सब में दो पॉइंट है, एक ही ऐसा है जहां पे 3 पॉइंट है. ओके, सो नेचर ऑफ द कमोडिटी, जिसमें हम बेसिक नेसेसिटीज के बारे में बात करेंगे. We will talk about the luxuries and we will talk about the comforts. इनकी बात करेंगे. अब बेसिक नेसेसिटीज हैं जो हमें चाहिए ही, व्हाट यू कॉल इट, एनी को सॉल्ट है तो वो चाहिए ही, बेसिक नेसेसिटी है. तो उसकी अगर प्राइस में चेंज हो जाता है तो डिमांड में कोई चेंज होगा नहीं. दैट इज व्हाई इट इज अगर प्राइस चेंज हुआ सॉल्ट का, ओके, तो भी डिमांड में कोई चेंज आया नहीं. दैट इज व्हाई इट इज इन इलास्टिक, बिकॉज यू कैनॉट चेंज द डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, इट रिमेन्स एज इट इज. अब लग्जरीज है, उसकी प्राइस में अगर चेंज आता है तो उसकी डिमांड में चेंज आ जाएगा. नो डाउट इट इज अ लग्जरी प्रोडक्ट. प्राइस अगर उसकी और हाई हो जाती है देन पीपल विल थिंक, ओके, सो इन दैट केस इट इज इलास्टिक. नाउ द लास्ट, कंफर्ट. कंफर्ट एक ऐसी चीज है जैसे हमने जिसमें न ज्यादा इलास्टिक होती है न ज्यादा इन इलास्टिक होती है. तो इसको हम किस में रखेंगे? मॉडरेटली इलास्टिक में. मॉडरेटली इलास्टिक में हम रखेंगे. ओके, बिकॉज द थिंग्स आर neither too costly no too cheaper, moderately elastic कहना यहाँ 100% सही है. ओके, सो एक ऐसा ही पॉइंट है ये नेचर ऑफ कमोडिटी जिसमें 3 टॉपिक्स हैं. ओके, नाउ टोटल 8 points are here in this topic. Okay, and 4 points we have done. 4 more points let us finish. Okay, factors affecting price elasticity of demand. 4 points: availability of close substitute, proportion of total expenditure spent on a commodity, habits and the nature of commodity. जिसमें हमने देखा से आपको इस टॉपिक में ऐसा है, एक ही चीज ध्यान रखना है, इलास्टिक कब होता है, इनइलास्टिक कब होगा. अगर प्राइस में चेंज होता है एंड डिमांड में चेंज होता है तो यू नीड टू कंसीडर इट एज इलास्टिक. दैट्स इट. नाउ टाइम पीरियड, द नेक्स्ट टॉपिक. पॉइंट नंबर 5, टाइम पीरियड के बारे में. लॉन्गर टाइम पीरियड एंड शॉर्टर टाइम पीरियड. अब देखते हैं क्या है. लॉन्गर टाइम पीरियड मोर इलास्टिक. डिमांड फॉर टेलीविजन. ओके, टेलीविजन ऐसी चीज है जो बहुत लॉन्गर टाइम पीरियड के बाद आप लोग वापस उसको दूसरा खरीदते हो. मतलब इट ऑलरेडी द इट इज एज सच ड्यूरेबल प्रोडक्ट जो 8-10 साल 15 साल भी चल सकता है. ओके, सो लॉन्गर टाइम पीरियड इज देयर फॉर सच प्रोडक्ट. तो उसमें अगर प्राइस में चेंज आता है, ओके, देन मोर इलास्टिक इज द डिमांड. देयर इज टाइम टू एडजस्ट टू द न्यू प्राइस. मुझे ऐसा लगेगा कि दिवाली में प्राइस इसका डाउन होगा तो वहां मैं उसकी डिमांड करूंगा, अभी मैं उसकी डिमांड करूंगा नहीं. तो प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज आएगा. तो इट इज मोर इलास्टिक. और इलास्टिक ऑल्सो यू कैन राइट. शॉर्टर टाइम पीरियड जो आपको चाहिए, मेडिसिन है वो चाहिए, उसको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते हो. इसको पोस्टपोन कर सकते हो, इसको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते हो. तो इसकी प्राइस में अगर चेंज आता है तो भी उस चीज की आपको डिमांड तो करनी ही पड़ेगी. ओके, सो इन दिस केस इट इज इन इलास्टिक. ओके, ये चीज ऐसी है जो आपको चाहिए. यू कैन नॉट, और यू कैन से लेस इलास्टिक और इन इलास्टिक. ओके, आप उसको लेस इलास्टिक भी कह सकते हो. ओके, नाउ दिस इज सच थिंग जिसको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते हो. यू नीड दैट प्रोडक्ट. ओके, इफ द प्राइस गोज हाई देन ऑल्सो यू नीड दैट प्रोडक्ट. दैट इज टाइम पीरियड. नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 6, डिफरेंट यूजेस ऑफ प्रोडक्ट.
ओके, अब डिफरेंट यूजेस ऑफ प्रोडक्ट में देखो, कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसके बहुत सारे यूजेस हैं और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसके बहुत कम यूजेस हैं. ओके, कोई एक प्रोडक्ट मान लो उसके बहुत सारे यूजेस हैं, देन आई एम राइटिंग हियर मेनी यूजेस एंड फ्यू यूजेस और लिमिटेड यूजेस आल्सो यू कैन राइट. अब इसमें देखते हैं इलास्टिक कहां पे, इन इलास्टिक कहां पे. इफ अ कमोडिटी कैन बी पुट टू मेनी यूजेस सच एज इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे जगह पे यूज होता है. Okay, so that is a product is being used at many places. उसके अगर प्राइस में चेंज आता है तो डिमांड एब्सोल्युटली चेंज हो ही जाएगी. देन इन केस दिस इलास्टिक. और एक ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसके कम यूजेस हैं या बहुत कम यूज हैं, ओके, देन इन दैट केस अगर उसकी प्राइस में चेंज आता है इन इलास्टिक. ओके, दिस इज पॉइंट नंबर 6. पॉइंट नंबर 7, लेवल ऑफ इनकम. ओके, लेवल ऑफ इनकम या तो बहुत हाई होगा, लो होगा, या तो फिर से मिडिल इनकम होगा. वेरी हाई एंड वेरी लो को हम एक साथ रखते हैं. ओके, वेरी हाई और वेरी लो एंड यह मिडिल इनकम, मिडिल ग्रुप जो होता है उसकी बात करते हैं. ओके, वेरी हाई एंड वेरी लो को साथ में रखते हैं. सी, कोई भी एक ऐसा पर्सन है जिसकी इनकम बहुत हाई है, या तो कोई भी एक ऐसा पर्सन है जिसकी इनकम बहुत कम है, तो उनकी अगर बात करें तो रिच पीपल को बॉदर ही नहीं करता अगर प्राइस में चेंज होता है, देन आल्सो दे विल बाय दैट कमोडिटी. ओके, एंड पुअर पीपल है तो वो तो ऑलरेडी उनको वो प्रोडक्ट खरीदना ही नहीं है. ओके, सो फॉर दैट इन दैट केस द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज इनइलास्टिक, बिकॉज प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कोई चेंज आया ही नहीं है. इट डज नॉट बॉदर द रिच पीपल, एंड लो इनकम ग्रुप है वो तो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स भी कम ही खरीदते हैं. नाउ जो मिडिल इनकम है वहां पे इलास्टिक आता है, बिकॉज प्राइस में चेंज होता है, देन दे डू रिस्पॉन्ड टू द डिमांड. ओके, सो दैट इज पॉइंट नंबर 7. लास्ट पॉइंट, लेवल ऑफ प्राइस. अब लेवल ऑफ प्राइस के बारे में देखते हैं एवरीवन. हाई प्राइस कमोडिटी एंड लो प्राइस कमोडिटी. हाई प्राइस कमोडिटी एंड लो प्राइस कमोडिटी. इसमें क्या है, लेट्स सी. अब कोई एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस बहुत हाई है, ओके, से प्लाज्मा टीवी, बाइक, कार और समथिंग लाइक दैट, जिसकी प्राइस बहुत हाई है, उसमें अगर प्राइस फ्यूचर में कम होने वाली है, देन आई विल वेट फॉर दैट. ओके, सो प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज आता है, दैट इज थिंग इज इलास्टिक. अब जिसकी प्राइस बहुत कम है, ओके, से पेंसिल है, मैच बॉक्स है, तो उनकी प्राइस में अगर चेंज आता है, देन डिमांड, दैट इज व्हाई इट इज इलास्टिक. ओके, सो दिस वाज आवर टॉपिक रिलेटिंग टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. ओके, सिर्फ हमने इतना ही यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट के मतलब टॉपिक के बारे में. इतना ही आप लोगों को सोचना है कि अगर प्राइस में चेंज होता है, ओके, एंड डिमांड रिस्पॉन्ड करता है, प्राइस में चेंज हुआ, डिमांड में चेंज होता है, देन इट इज इलास्टिक. ओके, लेकिन प्राइस में चेंज होता है, देन डिमांड में कोई चेंज नहीं आता है, इन दैट केस इट इज इनइलास्टिक. ओके, यू हैव टू रिमेंबर द पॉइंट्स ओनली. बाकी इलास्टिक एंड इनइलास्टिक आप अपने आप से लिख सकते हो. ओके, नाउ फोर्थ चैप्टर में जो थियरी के पोर्शन है, दैट वी हैव ऑलरेडी डन. Okay, now in our next session we are going to deal with the numericals. Okay, numericals are very important from this chapter. Okay, and we'll talk about the numericals in our next session. Okay, फिर भी if any case या any कोई topic में किसी भी subject में अगर आपको कुछ doubt है, then live classes हैं, we will discuss your doubts in that live classes. Okay, go through the videos. If you have any doubt, we will discuss the things in the live class. Okay, okay, so next lecture tak, thank you and have a nice day.